चलो कुछ क्वेश्चन अपन कर लेते हैं. फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन इज So x equals -1. और सॉल्व करने के लिए क्या किया? So just add first and then equate both sides. So x -1 equals -2. Then we can just verify by taking another. So x squared plus x plus 0 equals 0. So x equals हाँ, 0 or मतलब ये -1. करेक्ट है कि हमने ऑल एलिमेंट्स में ओनली केवल इस वाले केस को सॉल्व किया तो एक्स आ गया. बट हमें ये फिर ये वाले सारे केसेस को वेरीफाई भी चेक भी करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही. कोई Yes, भी एक अगर मिसमैच करेगा तो x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा. yes, sir. So diag means diagonal matrix, right? डायगोनल मैट्रिक्स, राइट. So how do you solve this without doing it manually? ये एक्चुअली ये बन जाता है कि डी आई ए जी ऑफ एक्स वाई जेड इंटू डी आई ए जी ऑफ ए बी सी. सॉल्व करने के बाद प्रॉपर मतलब वही मेथड है सॉल्व करने का, तो बट सॉल्व करने के बाद ये ए एक्स बी वाई सी जेड ऐसे बन जाएगा. और इसी के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा था कि जिससे ये चीज वेरीफाई हो जाए. जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाता है. समझ आ गया अब एलिमेंट्स क्या बने Yes, sir. इस So क्वेश्चन first का? A times A and then times B. हाँ, तो इस क्वेश्चन में बोलो नंबर्स क्या लिखूं मैं अब? So 419 times diag -1 3 2 -4 3 18.
Done, sir. So you do row into column multiplication over here, and then you take the two matrices as cos x with replace x with y for one, and you get cos x cos y minus sin x sin y, which is equal to cos x plus y, and then you get minus sin x plus y in the second term, and like that, sir. Correct. So you wanted in terms of Q and No, R. number. Answer is a number. Oh, okay, sir. So I'm not getting how to find a number, sir. Yes. A matrix are used to p square minus q square equal to r. Only इतना ही है. Yes, sir. And then trace is 2p. Since r is a prime number and it is written in as a product of two integers, right? Therefore, p minus q equals 1 and p plus q equals r. तो अभी क्या बचा फिर सब तो सॉल्व हो गया. So just that step I didn't get, sir, until you explained. After this, if p minus q is equal to 1 and p and q are prime numbers, therefore only possibility is p and q are prime numbers 3 and 2, p sir. and q are consecutive numbers. So 3 and 2. And this is only possibility because since ये consecutive numbers है तो एक even एक odd है and only even prime number is 2, so q must be 2. Yes, sir. So 6. कौन कौन से
So 1 by 12, 12 by 1, 3 by 4, 4 by 3, and 2 by 6, 6 by 2. और अभी 12 की जगह कोई बड़ा नंबर होता तो कैसे सॉल्व करते? So find prime factorization and then split that into two groups using PNC and then multiply by 2. ओके. So in this case, a plus b the whole square equals a square plus b square plus b plus a. And then so a square plus b square equals a plus b whole square minus b minus a. And so after that, I'm still solving. तुमने सेकंड टर्म क्या बोला? ओके, गॉट इट. ठीक है. देखो इसमें मेथड इस तरह से है. AB is equal to B given है. We have multiplied by A both side and ये A का पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया है. जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी मैट्रिक्स से तो ऑर्डर का ध्यान रखेंगे. Yes, sir. तो इन दिस केस अभी जो ये BA है, we can write this BA as A. तो A स्क्वायर इक्वल टू BA आ गया और BA ऑलरेडी A के इक्वल है, तो A स्क्वायर इक्वल टू A आ गया. सिमिलरली B स्क्वायर इक्वल टू B आ जाएगा.
ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शंस आ गए? So C and D. देखो ए स्क्वायर का वैल्यू सॉल्व करने के बाद आई बन रहा है। Yes, sir. अब ये तो मैट्रिक्स का पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब एक्स का वैल्यू But क्या sir, आया how फिर? do we get? Uh, how did we figure out it was A square, sir? What if it was A cubed? नहीं वही ना, ए क्यूब फाइंड करने के लिए भी अपन को ए स्क्वायर तो फाइंड करना ही पड़ता। Yes, sir. तो हम एक्चुअली वही ट्राई कर रहे थे। अगर ए स्क्वायर आई नहीं आता तो फिर हम ए क्यूब फाइंड करते, ए Okay, क्यूब sir. आई नहीं आता तो ए रेज़ टू पावर 4 फाइंड करते। अभी ए Yes, sir. स्क्वायर आई आ गया, बट एक्स का वैल्यू क्या आया? 2, sir. ओनली 2 या कुछ और भी आ सकता है? So any even power, sir. एनी इवन पावर। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस समेशन। For these x, तो इस समेशन का मीनिंग ये आ जाएगा।
फाइनल आंसर बताओ। What happened? No, sir. I'm sorry. First bracket is GP Yes, sir. and sum of first infinite terms. In this case, A upon 1 minus R. Yes, sir. 1 minus cos square. Okay, so cot square theta plus tan square theta. हाँ. And what is the minimum value of cot square theta plus tan square theta? So I don't remember, sir. अरे तो रिमेम्बर करना भी नहीं, ये तो लॉजिकल है. मेथड 1. ठीक है. मेथड 2. Yes, sir. Answer. मेथड 3 में अब देखो एक और पॉइंट होता है. आई थिंक अपन ने पता नहीं पहले कभी डिस्कस किया कि नहीं किया, बट y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, इसका ग्राफ हमें ध्यान रखना चाहिए. अभी अपन थोड़ा मैट्रिक्स से अलग जा रहे हैं 5 मिनट के लिए. y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का जो ग्राफ है उसका शेप ऐसे आता है. दिस इज एन ऑड फंक्शन. ऑड फंक्शन तो समझ आता है. Yes, sir. Symmetric about the origin. और कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने का बेसिक मेथड क्या होता है? So basic method put point put नहीं, values of मतलब x. उतना भी बेसिक नहीं कि हम इस फंक्शन का डोमेन लिखेंगे, फिर Yes, sir. फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जहां पे डेरिवेटिव 0 है उन पॉइंट्स पे वैल्यूज मार्क कर लेंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे. ये है बेसिक. मतलब हमने कहा कि इसका डोमेन है x belongs to -infinity to 0 यूनियन 0 to infinity. फिर हमने डिफरेंशिएट किया और इक्वल टू 0 किया. तो डिफरेंशिएट करने के बाद x का वैल्यू 1 और -1 आ रहा है. अब हम y का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे, y का वैल्यू x इक्वल टू -1 पे, y का वैल्यू x अप्रोचिंग टू -infinity पे, x अप्रोचिंग टू 0 माइनस पे, x अप्रोचिंग टू 0 प्लस पे और x अप्रोचिंग टू प्लस पे फाइंड कर लेंगे. यानी कि डोमेन के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं उन पे y का वैल्यू फाइंड करना है और जहां पे डेरिवेटिव 0 है उन पे y का वैल्यू फाइंड करना है. तो Yes, जो sir. पॉइंट्स आएंगे इनको हम xy प्लेन में मार्क करके ज्वाइन कर देंगे. 0 माइनस पे वैल्यू -infinity समझ आता है. Yes, sir. तो हमने ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ऐसे ये वाले पॉइंट्स को मार्क करके ज्वाइन कर दिया. तो ये ग्राफ ड्रॉ करने का बेसिक मेथड है कि डोमेन लिखो, डिफरेंशिएट करके 0 करो और डेरिवेटिव जहां 0 है और डोमेन के बाउंड्री पॉइंट्स, इन पे पॉइंट्स को मार्क करके ज्वाइन कर दो स्मूथली. इन जनरल, मतलब कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ वेरिएशंस अलग है, बट ये एक जनरल मेथड है. अब हमें ये वाला ग्राफ ही याद रखना है और ग्राफ को देख के समझ आ गया कि रेंज ऑफ y इक्वल टू x प्लस 1/x इज
माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इन Yes, दिस sir. केस जो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाला केस है, उसको इस मेथड से सॉल्व करने के लिए अगर हम tan स्क्वायर थीटा को कुछ x मान लें तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स तो बन जाएगा। लेकिन सिंस हमने tan स्क्वायर थीटा को x माना है तो x जीरो से इन्फिनिटी लाई करेगा ओनली, दैट मीन्स ग्राफ का ओनली ये वाला ब्रांच आएगा और इस ब्रांच का रेंज टू टू इन्फिनिटी है। तो यहां से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू टू समझ आ जाएगा। Yes, sir. अब इसका और एप्लीकेशन क्या है, तुमसे बोला जाए y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोसेक एक्स का रेंज बताओ। So 2 to infinity minus 2 to minus infinity. हाँ, तो इन दिस केस हम साइन एक्स को t लेंगे तो t माइनस वन टू वन लाई करेगा। माइनस sir. वन टू वन में ग्राफ का ओनली इतना पोर्शन यूज करेंगे, Oh, लेकिन इस right. Yes, पोर्शन में sir. भी रेंज तो कंप्लीट ही कवर हो गया। Yes, sir. तो अभी रेंज आ रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos x प्लस फोर sec x, इसका रेंज बताओ। So just one more. एक बार देखो, फर्स्ट स्टेप अगर ऐसे नहीं किया तो अपन को ऐसे सॉल्व करना है जिससे कि Yes, t sir. प्लस वन बाई टी बन जाए। आंसर लिखा गया। Understood, sir. तो सिंस ये a जो है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग माइनस इंफिनिटी टू माइनस फाइव बाई टू यूनियन फाइव बाई टू टू इन्फिनिटी लाई करेगा, तो y सिंस टू भी मल्टीप्लीकेशन में है तो माइनस इंफिनिटी से माइनस फाइव यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी लाई करेगा। Yes, sir.
Sir, just 1 minute, sir. Almost done. So see, हाँ सॉल्व करने के लिए क्या किया? so I first took I just tried to solve with a cube. So I did a square times a, 2a square minus ia. Ia is equal to a, and a square 2a square resubstituted into that. I got my final answer as 3a minus 2i, which is na minus n minus 1i. तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज पैटर्न बनाने लगे। अभी तो क्या यहाँ से बहुत क्लियर हो जाता है ऑप्शन, बट अगर क्लियर नहीं भी होता तो हम a raised to power 4 फाइंड कर लेते और वो 4a minus 3i आ जाएगा। तो इससे पैटर्न बन जाएगा, उस पैटर्न को जनरलाइज करके a raised to power n बता देंगे। Yes, sir. Sir, can you help with this question? ये एक टफ क्वेश्चन है और ये जेई एडवांस्ड में पूछा हुआ है, जो पहले सब्जेक्ट होता था उस टाइम पे। क्वेश्चन है बोला we have to find determinant of a minus i। इसको हमने x अज्यूम कर लिया, तो x हम बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई का मतलब, और i a इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। a कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बोलो? 1 minus a transpose. नॉट 1, I minus a transpose. I minus a transpose. We can write it as determinant of a into determinant of I minus a transpose। Yes, sir. I का ट्रांसपोज I हो जाता है, Yes, sir. that और determinant of a transpose determinant of a के इक्वल है, तो determinant of और determinant of a यहाँ पे ऑलरेडी 1 गिवन है, तो फर्स्ट नंबर को तो 1 1 लिख लेंगे। Yes, sir. सेकंड नंबर को हम determinant of I minus a, यहाँ तक ये बात समझ आ गई? The whole transpose. Yes, sir. का होल ट्रांसपोज, और that is equivalent to determinant of I minus a। Yes, sir. डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, के बाहर करेंगे तो क्या आएगा? K to the n a. Determinant a. Yes, sir. अभी हमने इस ब्रैकेट से माइनस साइन बाहर किया, तो माइनस 1 रेज़ टू पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई आ गया।
Sir, can you explain that step? माइनस साइन कॉमन लिया, Yes, sir. तो माइनस साइन मतलब कि -1 ऑफ काइंड ऑफ के हो गया, Yes, sir. के को Okay, डिटरमिनेंट के, understood. तो x इक्वल टू -x आ गया, सारा कुछ x ही चल रहा था। लास्ट में समझ आया क्या? No, sir, can you explain it again? ये सारा x है, Yes, sir. ये -1 है, Yes, sir. और इसी को तो हमने x अज्यूम कर रखा है। Right. Okay, so x equals -x, x equals 0. अभी समझ आया कंप्लीट सॉल्यूशन? Yes, sir. So 1 minute, can I know? नोट किया? Yes, sir. एक तो है ना डिटरमिनेंट मैट्रिक्स शीट में कई क्वेश्चंस में ओमेगा का यूज किया हुआ है। ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो उसकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज तुम्हें पहले से पता है? Yes, sir. हाँ, तो बस इनको यूज कर लेना, कई सारे क्वेश्चन में यूज आता है। और जो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली, जैसे अभी अपने आज जो पढ़ा है मेनली तो थ्योरी डिस्कस किया है, तो थ्योरी वाइज तो ये मैट्रिक्स चैप्टर समझने में सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें खास बात, बस इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसके क्वेश्चंस जेई में टफ आते हैं बिकॉज वो प्योर मैट्रिक्स का कम आता है, मैट्रिक्स के साथ कोई अदर चैप्टर को मिक्स करके ज्यादा आता है। जैसे मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स कर दिया, Yes, sir. जनरली जेई का फेवरेट होता है मैट्रिक्स एंड पीएनसी मिक्स कर दिया, मैट्रिक्स एंड वेक्टर थ्री मिक्स कर दिया, तो इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, बट जैसे जो ये वाला क्वेश्चन ओनली मैट्रिक्स का ही है और ये जेई में आया हुआ है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो एक बार तुमने अभी हाइपरबोला में 2 आई थिंक आज ए किया था ना डिस्कस हमने? Yes, sir. 2A, the first half, sir. हाँ, तो हाइपरबोला का एक बार कंप्लीट कर लो, जो भी बुकलेट में कंप्लीट करना है। उसके Okay, बाद sir. फिर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से शुरू करना है। अगर तुम डेट मैट का शुरू कर रहे हो तो एक्सरसाइज 1A में स्टार्टिंग में जितने भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस हैं, आई थिंक अप टू 30 हैं, ये तुम सॉल्व कर सकते Sir, can you send the PDF for determinant and matrices? हो। ओके, मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, Yes, sir. चलो फिर अभी आप आज अपनी यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Bye, sir. Thank you. ओके, बाय।